हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन योर मैथ्स क्लास। पिछले वीडियो में बेटा हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया था एंड वी विल रीड ऑल डेफिनेशंस और रिलेटेड टू रिलेशंस एंड वी आल्सो सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1. नाउ वी विल कंटिन्यू द एक्सरसाइज. सो look at the second part of question number 1. Relation R in the set n of natural numbers defined as R equal to x comma y such that y equal to x plus 5 and x is less than 4. यहाँ पे आपको बेटा जो सेट दे रखा है that set is of natural numbers and relation is given by y equal to x plus 5 and you have to take only those values of x which are less than 4. ओके तो सबसे पहले आप डिफाइन करते हैं, देखते हैं कि हम यहाँ पे इस रिलेशन को कैसे नोट डाउन कर सकते हैं. सो रिलेशन को नोट डाउन करने के लिए बेटा हम देखते हैं सबसे पहले इफ़ वी टेक x इक्वल टू 1, हमें x की वही वैल्यूज़ लेनी है जो लेस देन 4 हैं. सो इफ़ वी टेक x इक्वल टू 1 देन y विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बी 1 प्लस 5 that is equal to 6. Okay, same as if we take x equal to 2, y will be equal to 7. If x is equal to 3, then y is equal to 8. Now for reflexive relation we have to check that is x comma x belongs to R. For example, if we take the value of x as 1, so it will be 1 comma 1, but here we can clearly see 1 comma 1 does not belongs to R. आप देख सकते हैं बेटा रिलेशन R में 1 comma 1 कोई भी सेट नहीं है, कोई भी पेयर नहीं है. Therefore we can easily say that R is not reflexive. Okay, now we will check that the relation is symmetric or not. Okay, so for symmetric we will check that for all x comma y is y comma x belongs to R. तो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम. here 1 comma 6 belongs to R. Okay, but if we take y comma x that is 6 comma 1, we can clearly see 6 comma 1 does not belongs to R. R में 6 comma 1 कहीं पर भी नहीं है. Therefore R is not symmetric. Okay, now the third part we will check the relation is transitive or not. So if we take a term 1 comma 6 that belongs to R and we take second term 2 comma 7 that also belongs to R, we can easily say that term 1 comma 7 does not belongs to R. यहाँ पे 1 comma 7 कोई भी term नहीं है R में. Therefore R is not transitive. So for the given question we can say the relation R is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. It's okay. Now we will see the question number 3rd. Here the relation is x comma y such that y is divisible by x and set A is given by 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6. Okay, so we will make the relation R. relation R क्या हो सकता है बेटा? सबसे पहले हम लेंगे x equal to 1. So according to the given relation the y will be divisible by x. तो हम यहाँ देखेंगे सेट A में ऐसे कितने नंबर हैं जो 1 से डिविजिबल हैं. सो वी कैन ईजिली से ऑल द गिवन नंबर्स आर डिविजिबल बाई 1. सो रिलेशन R के कुछ टर्म्स क्या होंगे? 1 comma 1, 1 comma 2, 1 comma 3, 1 comma 4, 1 comma 5, 1 comma 6. Similarly, if we take x equal to 2, so we will write on the place of y those numbers which are divisible by 2. So here is only 3 numbers 2, 4 and 6 which are divisible by 2. Therefore it will be 2 comma 2, 2 comma 4, 2 comma 6. Same as we will take 3, 4, 5, 6 in the place of x and write the value of x and we will get the relation R like this. Okay, now we will check the given relation is reflexive or not. So reflexive condition के लिए we will see all x comma x, all possibilities of x comma x. If we take here 1, the 1 comma 1 is also belongs to R. If we take x equal to 2, 2 comma 2 also belongs to R. If we take x equal to 3, 3 comma 3 is here, 4 comma 4, 5 comma 5 and 6 comma 6.
So we can easily say that R is reflexive because all x comma x belongs to R. Okay. Now we will see that the relation is symmetric or not. So if we take randomly any x comma y, we take any term from here. Let we take 1 comma 6. Okay. For 1 comma 6 belongs to R, इस 6,1 बिलोंग्स टू आर. हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे 6,1 कहीं भी टर्म नहीं है. सो 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर. देयर फॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक. ओके. नाउ third part is r is transitive or not. So we will take any two pairs. Let us start with 1 comma 1 and 1 comma 4. For 1 comma 4 and 4 comma 4, 1 comma 4 also belongs to R. Same as if 1 comma 1 and 1 comma 4, there will be also 1 comma 4 which belongs to R. In same manner you can take any of these sets. इसमें से आप कोई भी सेट लेते हैं बेटा, and we will check. Let's check 2 comma 4 and 4 comma 4. Okay. For 2 comma 4 and 4 comma 4, it is 2 comma 4 also belongs to R. Therefore we can say that R is transitive. Okay. So at last we will say R is reflexive and transitive but not symmetric. It follows the condition of reflexive relation and transitive relation but doesn't follow the condition of symmetric relation. तो बेटा इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट आपको करने हैं. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन नंबर 2. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव. तो आपको यहाँ पे रिलेशन दे रखा है बेटा, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर. ओके. सो सबसे पहले हम चेक करेंगे दिस इज रिफ्लेक्सिव और नॉट. हमारे पास यहाँ पे जो सेट है बेटा, सेट आर इज ऑफ रियल नंबर्स. इट मीन्स सारे नंबर यहाँ पे कंसीडर होंगे. रियल नंबर्स में सारे नंबर्स आते हैं. सो फॉर फर्स्ट कंडीशन वी विल चेक ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर. अगर हम ए की जगह बेटा कोई भी टर्म लेते हैं, फॉर ऑल मीन्स हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर लेते हैं, उसके लिए तो एक कंडीशन सिंपल फॉलो होगी. लेट वी टेक, अगर हम 2 लेते हैं, सो 2 इज़ लेस देन और इक्वल टू 2 स्क्वायर इज़ 4. ऑलवेज ये जो है ओके होगा. बट इफ़ वी टेक एनी नंबर बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बीच में हम कोई भी डेसिमल नंबर लेते हैं या रेशनल नंबर लेते हैं. लेट्स वी टेक 0.1. सो 0.1 का स्क्वायर क्या होगा? 0.01 विच इज़ ग्रेटर देन, और हमारी कंडीशन क्या है, ये नंबर होना चाहिए लेस देन. सो इस कंडीशन में ये फॉलो नहीं करेगा. देयर फॉर वी विल से a less than a square is false in this condition. Therefore r is not reflexive. Okay. बाकी सारी कंडीशंस में फॉलो होगा, सिर्फ 0 से 1 के बीच के डिजिट्स हम लेंगे तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगी. ओके. नाउ सेकंड पार्ट हम चेक करेंगे ना ये सिमेट्रिक है या नहीं. सो वी विल सी हेयर if we take any term, let we take 1 comma 2. In this term we have 1 is less than or equal to 2 square, that is 4. But if we take its opposite, that is y comma x, it means 2 comma 1, then 2 and square of 1 which is 1 is never less than or equal to 1. So इस कंडीशन में भी ये फॉलो नहीं होगा. Therefore the R is not symmetric. Same as we will check the third condition that R is transitive or not. So let, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए जब बेटा चेक करते हैं तो हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. लेट a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2. जब ये कंडीशन हम लेते हैं तो फर्स्ट हमारे पास बनता है 6,4, सेकेंड वन इज़ 4,2 एंड इनसे जो कंबाइंड रिलेशन बनता है वो हमारे पास वो आता है 6,2. अब देखिए बेटा 6,4 विल बिलोंग्स टू आर बिकॉज here 6 is less than equal to square of 4 which is 16. Okay.
सेम एज इन दिस कंडीशन 4 इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 2, इट मीन्स 4. सो ये दोनों कंडीशन तो फॉलो हो रही हैं, इट मीन्स ये दोनों हमारा आर में बिलोंग करेंगे. बट फॉर लास्ट कंडीशन वी गेट 6, 2 which is not possible. 6 is less than equal to 2 square is 4, which is not possible. Therefore r is not transitive. So in this condition we will say that r is neither reflexive nor symmetric and nor transitive. So हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट करने के बेटा ये मेथड्स आ गए हैं. तो अब आगे के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के अपने आप सॉल्व करने हैं, और हेल्प के लिए आपके पास जो आपको लिंक सेंड किया गया था उसमें सॉल्यूशंस आपको दिए गए हैं. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 7. एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल हम देखते हैं बेटा, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में है. यहाँ पे आपको दे रखा है रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक्स इन अ लाइब्रेरी is given by r is equal to x comma y such that x and y have same number of pages. Okay, relation r आपको जो दे रखा है that is defined by x and y have same number of pages, and set जो दे रखा है वो आपको set is a is of all books in library of a college. So सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं. ओके, सो वी विल चेक डज x कॉमा x बिलोंग्स टू r. ओके, तो बेटा आप कोई भी बुक लें, यहाँ पे आपको रिलेशन देखिए बहुत सिंपल सा दे रखा है. इफ़ वी हैव x कॉमा वाई देन इट मीन्स x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. सो अगर हम सेम टाइप की दो बुक्स लेते हैं दैट इज़ x कॉमा x, so they definitely they have the same number of pages, therefore the relation is रिफ्लेक्सिव. आप लाइब्रेरी में से कोई भी बुक ले लीजिए और सेम एज दूसरी बुक लेते हैं तो दे विल डेफिनेटली हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. सेम एज हम चेक करते हैं दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक और नॉट. सो इफ़ वी टेक x कॉमा वाई इट मीन्स नंबर ऑफ पेजेस इन x एंड y आर सेम. और अगर हम इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं दैट इज़ y कॉमा x, तो यहाँ पे आता है मीनिंग y एंड x हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. सो इफ़ x इक्वल टू y देन इट इज़ डेफिनेटली दैट y इज इक्वल टू x. देयरफॉर दिस रिलेशन इज ऑल्सो सिमेट्रिक. आप लाइब्रेरी से कोई भी दो बुक्स ले लीजिए डिफरेंट टाइप की, डिफरेंट ऑथर्स हैं या डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन उनके पेजेस सेम हैं, तो आप उन्हें आगे पीछे रखिए या किसी और मेथड में रखिए, उनके पेजेस हमेशा सेम होंगे. दैट मीन्स कि आर इज सिमेट्रिक. ओके, नाउ वी विल चेक द थर्ड पार्ट कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं. सो इफ़ वी टेक 3 बुक्स फ्रॉम लाइब्रेरी दैट आर x, y and z. So if x comma y belongs to R, it means x and y have the same number of pages and y and z have the same number of pages. तो it is definitely बेटा ये तो सही होगा ही कि if x equal to y and y equal to z that it is compulsory, therefore that x comma z belongs to R, it means x equal to z. x और y में सेम पेजेस हैं, y और z में सेम पेजेस हैं, तो x और z में सेम पेजेस होंगे. therefore R is transitive. Therefore we can say R is reflexive as well as symmetric and transitive. In this condition we will say R is an equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन की यही कंडीशन थी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन फॉलो होने चाहिए. यहाँ तीनों रिलेशन फॉलो हो रहे हैं, सो दिस रिलेशन विल बी इक्विवेलेंस रिलेशन. अब आपको बेटा ये एक्सरसाइज होमवर्क में करनी है. एक्सरसाइज 1.1 इज योर होमवर्क, सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज. ओके.